Good morning, students. Today we are going to read chapter 2nd of Moral Values. The name of this chapter is Keep Smiling. In this chapter, value taught be cheerful. Life skill developed self-awareness, interpersonal relationship and creative writing. So in this chapter you will learn how to be cheerful. Okay, why we should be cheerful all the time, and the life skill that you will develop is self awareness. Okay, awareness about yourself, and you will learn about interpersonal relationship and creative writing. Okay, so let's start this chapter. Cheerfulness refers to a jubilant and happy state of mind. It is reflected through pleasant and joyful behavior. A cheerful person is always smiling and laughs a lot. Cheerfulness is highly influenced by positive or negative way of thinking. So, cheerfulness. What is the meaning of cheerfulness? Cheerfulness means the state of being noticeably happy. Okay, it refers to a jubilant and happy state of mind. What is the meaning of jubilant? Jubilant means feeling or expressing great happiness, okay, joyfulness. And cheerfulness, it is reflected through pleasant and joyful behavior. So if anyone is very cheerful, then we can see that he is very happy. Pleasant means giving a sense of happiness, happy satisfaction or enjoyment. Okay, so we can see that he is very happy and he is very full of joy. So in his behavior we can see that happiness is there. A cheerful person is always smiling and laughs a lot. If a person is cheerful, then we can see that he will laugh a lot and he has a smiling face. Okay, cheerfulness is highly influenced by positive or negative way of thinking. An optimistic person looks at the positive side of the things and thus remains happy all the time. However, a pessimistic person looks at the negative side of the things and thus remains sad and worried. So, cheerfulness, okay, it is a state of mind when somebody is happy. It is a happy state of mind. And this cheerfulness, influence means it is affected by positive or negative way of thinking. How we think? Do we think in a positive way or do we think in a negative way? These things influence or affect this behavior, this cheerfulness. Okay, it is highly influenced by the way of thinking, our thought process. An optimistic person. Who is an optimistic person? An optimistic person is the one who look at the positive side of the thing, who look at the good side of the thing, and by looking at the positive side of the thing, he remains happy all the time. Okay. However, pessimistic person. Who is a pessimistic person? The one who is pessimistic, he will look at the negative side of the things and remain sad and worried. Okay, for example, suppose tomorrow is your test. Okay, so the one who is optimistic, okay, he will think that, oh, it's very good that teacher is taking our test, it will help us to score better. We can have a reality check, and how much we have studied, we can check that. Okay, and it will help to improve our scores and it will help to in our learning. But the student who is pessimistic, he will think, oh no, tomorrow is our test, I have to study a lot. Okay, I want to play but I have to study, I have to work hard, it's quite boring. So pessimistic person will think like that. Okay, so if one is optimistic, then he will remain happy all the time. But if somebody is pessimistic, then he will look at the negative side of things and remain sad and worried. Okay, so cheerfulness.
देखो बेटा, आज हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, जिसका नाम है कीप स्माइलिंग। यहाँ इस चैप्टर में हम जो है वैल्यू पढ़ेंगे, मॉरल वैल्यूज़ है, तो वैल्यू हम सीखेंगे बी चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, उत्साहित रह सकते हैं, ठीक है। और लाइफ स्किल क्या डेवलप होगी? लाइफ स्किल होगी कि भाई हम सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर रखना कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप के बारे में जागरूक रहना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हमारे आपस के रिश्ते हैं अपने माता पिता के साथ, भाई बहन, फ्रेंड्स के साथ, उसके बारे में हम जो है सेल्फ अवेयर होंगे। क्रिएटिव राइटिंग हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। ये सब लाइफ स्किल्स आप डेवलप करोगे इस चैप्टर में। यहाँ पे लिखा हुआ है चेयरफुलनेस। चेयरफुलनेस का हिंदी का मीनिंग होता है उत्साह, ठीक है। तो अगर कोई चेयरफुलनेस का मतलब है जब हमारा जो है मन बहुत हैप्पी हो, खुश हो। जुबिलिएंट का मतलब क्या होता है? जुबिलिएंट का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस। जब हम हैप्पी होते हैं, जब हमारा माइंड खुश होता है, जब हम खुश होते हैं, तब हम उसको चेयरफुलनेस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्सन चेयरफुल है तो हम आराम से देख सकते हैं वो बहुत खुश होगा, प्लेजेंट, खुश होगा, जॉयफुल होगा, हैप्पी होगा। वो हम उसके स्वभाव में, उसके बिहेवियर में देख सकते हैं, ठीक है। एक चेयरफुल पर्सन हमेशा क्या करेगा? स्माइलिंग उसका फेस होगा, हंसेगा, ठीक है। तो हंसेगा वो, जो पर्सन चेयरफुल होगा वो हंसेगा, उसके फेस पे आप एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देख सकते हो। जैसे आप छोटे बच्चों को देखो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी होते हैं, वो चेयरफुल होते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे मोस्टली चेयरफुल होते हैं। अब जो चेयरफुलनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे वे ऑफ थिंकिंग पे, कि क्या हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, या फिर पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कौन से होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक पर्सन उन्हें कहा जाता है बेटा जो चीज़ों की, एक कोई भी सिचुएशन है उसकी अगर पॉजिटिव साइड को अगर वो व्यक्ति देखता है और उस पॉजिटिविटी को देख के वो खुश रहता है हमेशा, तो ऐसे व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कहा जाता है। और पेसिमिस्टिक पर्सन कौन होते हैं? जो कोई भी सिचुएशन है, चाहे उसमें कुछ भी अच्छा हो, पर वो देखेगा हमेशा नेगेटिव साइड को, और उस नेगेटिव साइड को देखते देखते वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। जैसे कि आप ले लो, आपका कल मान लो कि टेस्ट है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक अगर बच्चा है कोई, तो वो सोचेगा कल मेरा टेस्ट है, बहुत ही अच्छी बात है कि टीचर हमारा टेस्ट ले रही है, इससे हमारे मार्क्स हमें पता लगेंगे कि हम कितना पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहता है या नहीं रहता, इससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारियां होंगी। तो एक उसने पॉजिटिव साइड देखा ना उस चीज़ का, और इस वजह से वो बच्चा मेहनत भी करेगा और खुशी खुशी करेगा, ठीक है। पर अगर कोई बच्चा पेसिमिस्टिक है तो क्या सोचेगा? अरे कल मेरा टेस्ट है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मम्मी डांटेंगी नहीं आए तो नंबर। तो उसने क्या देखा? उसी सिचुएशन का नेगेटिव साइड देखा, तो उस वजह से वो बच्चा दुखी हो गया और बहुत परेशान भी हो गया। तो ऐसे को पेसिमिस्टिक कहा जाता है। तो जो हमारी चेयरफुलनेस है, ठीक है, जो हमारा उत्साह है, चेयरफुलनेस का हिंदी वर्ड है उत्साह, तो वो डिपेंड करता है हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग पे, कि हम ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, ठीक है। A cheerful person is like a magnet. He or she attracts people towards him or her. He or she laughs and makes others laugh. He or she is humorous in nature and spreads happiness everywhere. So, if somebody is a cheerful person, okay, if someone is cheerful, then he will act like a magnet. What does a magnet do? Magnet, it attracts. It has a property of attraction, yes or no? Just like a magnet attract an iron nail, in the same way a cheerful person also attract other people, okay. So cheerfulness, a cheerful person, he or she attracts
people towards him or her. Okay, he or she laughs and makes other laugh. So a cheerful person is always happy, and you can see smiling. You can see that they are always smiling, always laughing, and they can make others laugh too. Okay, he or she is humorous. What is the meaning of humorous? Funny in nature. Okay, and spread happiness everywhere. So a cheerful person is like a magnet. They are very attractive, and their behavior, their happy behavior attract other people, and they can make other people laugh, they can make other people happy, and they are very funny in nature, and they spread happiness everywhere. तो बेटा एक उत्साह से भरा व्यक्ति, चेयरफुल व्यक्ति एक चुंबक की तरह होता है। चुंबक आप सबने देखा होगा, क्या करता है? वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। उसी तरह से जो एक चेयरफुल पर्सन होगा वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करेगा, खींचेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन हमेशा रोता है, शिकायतें करता है, तो क्या आप उसके साथ ज़्यादा देर बैठना पसंद करोगे? नहीं ना। पर अगर कोई बच्चा बहुत हंस रहा है, खुश है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, स्माइलिंग उसका फेस है, तो ऐसे लोगों के साथ हर कोई बात करना चाहेगा, हर कोई उनके साथ रहना चाहेगा। तो जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता है उसकी तरफ लोग भी आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं और वो दूसरों को भी हंसा सकते हैं। जो एक चेयरफुल पर्सन होता है वो बड़े फनी नेचर के होते हैं, हंसमुख होते हैं, हंसाते हैं, फनी होते हैं और खुशियाँ फैलाते हैं हर जगह पे। ठीक है, इसलिए वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, रिसाइट द फॉलोइंग पोएम। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएम। If everyone would have been cheerful, there would have been no sad, just a world of happiness. Life would have been so glad, lots of smiling faces we would have seen, just a world so joyful, no mystery there would have been. Wouldn't it have been nice if we could have been this way, to see a happy world each and every day, smile on every face, filled with delight? The world would have been a happy place, so cheerful and so bright. So this is a very beautiful poem, and it is about cheerfulness. Okay, so if everyone would have been cheerful, then there would be no sadness, no unhappiness. Okay, and this world will be very full of happiness and glad. What is the meaning of glad? Glad means happy. Okay, and life would be filled with joy, happiness, and you can see smiling faces all around because everyone is cheerful. Yes or no? And this world become very joyful, and there would be no miseries. What is the meaning of misery? Misery means a cause or source of great distress or discomfort. It is the meaning of misery. Okay, so it would be very nice if if everyone in this world is cheerful, then this would be very nice. Okay, and if the world is full of cheerful person, then you can see happy world each and every day, lots of smiling faces, and people are filled with delight. Yes or no? Yes. And this world would be a happy place, so cheerful and so bright. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि अगर मान लो अगर सब चेयरफुल होते, खुशनुमा होते, खुश होते, उत्साहित होते, तो कोई भी दुखी नहीं हो पाता और ये जो दुनिया है खुशियों से भरी होती, सब खुश होते, यहाँ पे बहुत सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको दिखते, हम देख सकते हैं, और ये दुनिया जो है खुशियों से भर जाती, कोई भी मिजरी नहीं होती। मिजरी का क्या मतलब होता है? कष्ट। ठीक है, किसी अब सब खुश है, सब पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, तो ये कोई कष्ट नहीं होता और ये बहुत ही नाइस होता, बहुत अच्छा होता है। ऐसी दुनिया होती तो कितना अच्छा होता है ना। इस तरह से हम जो है अगर सब चेयरफुल होते तो हम एक खुश दुनिया देख सकते हैं हर जगह, और स्माइलिंग फेस देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है। डिलाइटेड का क्या मतलब होता है?
ग्रेट प्लेजर, यानी खुश है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं लोग, और ये दुनिया बहुत ही हैप्पी जगह हो जाती रहने के लिए, जहाँ पे सब खुश होते, सब खुशी से क्या होते, चमक रहे होते, ग्लो कर रहे होते, ठीक है, अगर सब जो है चेयरफुल होते तो ये आपकी एक पोयम थी चेयरफुलनेस के बारे में। Children, in the modern world, life is full of tension. People want to relax themselves by way of laughter. Success of comedy films and comedians like Kapil Sharma prove the point. However, one should remember that money cannot buy cheerfulness. It comes from inside and is free of cost. It is a fruit of good mental and physical health. So, my dear students, in this modern world, life is full of tension. Yes or no? You are tensed about your exams. Parents are tensed if you will score better, good or not in exam. Yes or no? Yes. So everyone is life is full of tension. Okay. But so people, they find different ways to relax themselves. Okay. So to release that tension or stress, how they relax themselves by finding different way of laughter. For example, most of you, everyone has seen comedy nights with Kapil. Yes or no? It's a comedy show and Kapil is a comedian, so that show makes us laugh, and if you laugh a lot, then you will feel tension free. Yes or no? You will feel relaxed. So comedy films and comedy shows, they are way to relax themselves. Okay, but we should always remember that money can't buy cheerfulness. Money can't bring joyfulness, because it may be possible that somebody is very rich and very healthy, very rich, okay, but he is not happy from inside. But if you see the children on the street who are very poor, okay, they don't have many resources, but still they have smiling face, that shows that money can't buy cheerfulness. Cheerfulness is a state of mind. It is a state of mind. It comes from inside and it is free of cost. So cheerfulness is a result of good mental health. If you think in a positive way, if you think good about others, then cheerfulness comes automatically. It is a result of good mental and physical health. Okay? तो बच्चों, आजकल के ज़माने में सबके पास टेंशन है. देखो, आप बच्चे हो, पर आपको भी तो टेंशन है ना. होमवर्क पूरा करना है, ट्यूशन जाना है, टेस्ट की तैयारियां करनी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए पढ़ना है, तो ये आपको टेंशन है. पेरेंट्स को क्या टेंशन है? बच्चों के नंबर आएंगे नहीं आएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है, तो वो आपको लेकर टेंशन में है, आप पढ़ाई को लेकर टेंशन में है. ऐसे लाइफ में बहुत टेंशन है. तो लोगों ने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तरीके ढूंढे, कैसे? हंसी मजाक के. तो जो कॉमेडी फिल्म्स है आप देखते हो, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो फिल्म नहीं है, सीरियल है, बट है तो वो कॉमेडी ना. और भी कॉमेडी मूवीज़ कोई आपने देखी है जो आपको याद हो, है ना? होगा जो आपको फेवरेट हो, जैसे गोलमाल है, ये सब कॉमेडी फिल्म्स है. कॉमेडी शोज कौन से? जैसे कपिल शर्मा का शो है जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता है, उसमें कितना हंसा आता है कपिल शर्मा, है ना आपको. तो जब वो आप हंसते हो तो आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हो, है ना. तो ये सारों ने ये पॉइंट को प्रूव कर दिया कि भाई जो हंसी मजाक से जो है वो टेंशन थोड़ी दूर होती है. इसलिए कॉमेडी फिल्म और कॉमेडी शो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है? क्योंकि लाइफ में इतनी टेंशन है और लोगों ने जो है एक लाफ्टर को एक तरीका बनाया है अपनी टेंशन को रिलैक्स करने का, और लोगों ने लाफ्टर की तरफ देखा कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, इसलिए कॉमेडी फिल्म्स और कॉमेडी शोज, कॉमेडियंस जो है इतने सक्सेसफुल हो गए. ठीक है. हाउएवर, बट फिर भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पैसा है वो कभी भी खुशियों को जो है खरीद नहीं सकता. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि देखो, मान लो कोई बिल्कुल गरीब बच्चा है जो सड़क पे घूमता है, वो भी खुश होते हैं. भाई, गरीब बच्चे क्या खुश नहीं होते? होते हैं वो भी, पर उनके पास तो पैसे नहीं है, पर फिर भी वो खुश होते हैं.
हो सकता है कोई गाड़ी में घूम रहा हो, बहुत अमीर हो, पर फिर भी वो दुखी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी हो, वो अच्छे हेल्थ में ना हो। तो इससे हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसों से खुशियाँ नहीं आती। जो खुशियाँ होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो उत्साह होता है, वो अंदर से आता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारे मेंटल स्टेट पे। अगर हम गुड मेंटल हेल्थ में हैं, यानी कि हम अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, खुद के लिए अच्छा सोच रहे हैं, चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, उसको कहते हैं गुड मेंटल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी है, हमें बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम जो है चेयरफुल स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं। तो चेयरफुलनेस जो है वो पैसा नहीं खरीद सकता, पैसों से आप चेयरफुलनेस नहीं खरीद सकते, बल्कि एक अंदर की स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर आपकी गुड मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है तो आप चेयरफुल रह सकते हो। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग only up to this. Okay, so I have written a few words that will be helpful for you while reading this chapter. So let's see these words. The first word is cheerful. So first word is cheerful. What is the meaning of cheerful? State of being noticeably happy. चेयरफुल का मतलब होता है उत्साह, जब आप उत्साहित होते हो, ठीक है, जब आप खुश होते हो, एक स्टेट ऑफ माइंड है ये। प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब क्या है? गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और एन्जॉयमेंट। प्लेजेंट का मतलब भी क्या होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है सुहाना, ठीक है, सुहाना, हिंदी में इसको सुहाना कहते हैं, जो खुशनुमा होता है जो। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब फनी या कॉसिंग लाफ्टर, यानी कि मजाकिया, ठीक है, जो कॉमिकल हो थोड़ा सा। मिजरी, अ कॉज और सोर्स ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। मिजरी का मतलब होता है कष्ट, दुख, दर्द, इसको मिजरी कहते हैं। डिलाइट, डिलाइट मीन्स ग्रेट प्लेजर। लास्ट वर्ड आपका जुबलिएंट। जुबलिएंट का मतलब होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, आनंदित होते हो, हैप्पी होते हो, तो जुबलिएंट होते हो आप, ठीक है। So I hope you understood this today's class. Please read this chapter. Keep smiling at least 2 times, and in next class we will continue this chapter. Thank you so much. Have a nice day. Bye.